India has lost one of the most legendary voices. Asha Bhosle passed away on April 12th in Mumbai at the age of 92. Her last rites will be performed shortly at Chaitya Bhumi in Mumbai's Dadar area. Preparations for the funeral are underway and the last rites will be conducted according to Hindu rituals. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis, Deputy Chief Minister Eknath Shinde and Sunitra Pawar are expected to attend. She was admitted to the hospital a day earlier due to a chest infection and breathing problems. Her son Anand Bhosle confirmed the news, saying that she passed away peacefully. Earlier, fans and well-wishers paid their last respects at her residence in Lower Parel. Celebrities and fans alike are remembering her not just for her songs, but for the emotion and the life she brought to every performance. Asha Bhosle's passing marks the end of an era with a career spanning decades. Her voice became a part of millions of lives. From the timeless classics to modern hits, her voice defined generations. She may be gone, but her music will live on forever. सुरों की मल्लिका कही जाने वाली आशा भोसले का अंतिम संस्कार अब से कुछ ही देर बाद मुंबई के दादर इलाके में स्थित शिवाजी पार्क में इसी जगह पर होगा। देखिए, तमाम तैयारियां इस वक्त शुरू हो चुकी है, जहां पर कई सारे फिल्मी कलाकार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दोनों मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनीता पवार भी यहां पर मौजूद रहेंगे। और कुछ ही समय बाद जो आशा भोसले का पार्थिव शरीर है, उनके परिवार वाले यहीं पर लेकर आएंगे और यहीं पर अंतिम संस्कार की तमाम जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। और हिंदू रीति रिवाज के तहत उनको जो है वो मुखानी जाएगी और उनके पार्थिव शरीर में उनकी चिता को जो है वो आग लगाई जाएगी, आग जलाई जाएगी। और साफ तौर पर देखिए यहाँ पर किस तरीके से तमाम जो लोग हैं, तैयारियां होने, फूल मालाएं सज रहे हैं। और आशा भोसले का जो जीवन था वो एक दशक था, जिस तरह से बॉलीवुड के कई फिल्मों के गानों पर राज किया और जिस तरह से लता मंगेशकर का एक नाम है, उसी तरह से लता आशा भोसले जी का भी जो नाम है वो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। क्योंकि जब जब सिनेमा का इतिहास लिखा जाएगा तब तक आशा भोसले और लता मंगेशकर जैसे जो गायिका थी वो जरूर जो है याद की जाएंगी। जिस तरह से गानों पर लोगों के दिलों पर राज की और जिस तरह से लोगों के दिलों पर छाई हुई, देखिए तैयारियां हो चुकी हैं। मुंबई पुलिस भी सुरक्षा के कुछ इंतजाम की हैं। शिवाजी पार्क मैदान के ठीक पास में ही ये शमशान भूमि है और इसी वजह से तमाम पुलिस कर्मी जो है यहाँ पर तैनात किए गए हैं। आसपास कई जगह में बैरिकेटिंग जो है वो लगाए गए हैं ताकि भीड़ जो है यहाँ पर इकट्ठा ना हो सके। और बिना जो है आसपास की जगहों पर पुलिस भी चप्पे चप्पे पे निगरानी रखी हुई है ताकि किसी प्रकार की कोई घटना न घट सके। तो ठीक 4 बजे इसी जगह पर पंचतत्व में जो है वो विलीन हो जाएंगी आशा भोसले। Meanwhile, Deputy Chief Minister Eknath Shinde has arrived at the residence of Asha Bhosle and he is meeting with the family members and he's also expressing his condolences to the family members. The singer was admitted to the hospital a day earlier due to a chest infection and breathing problems. Her son Anand Bhosle confirmed the news, saying that she passed away peacefully. Fans and well-wishers paid their last respects at a residence in Lower Parel. Celebrities and fans alike are remembering her not just for her songs, but for the emotion that life she brought to every performance. Asha Bhosle's passing marks the end of an era with a career spanning decades, her voice becoming a part of millions of lives. From timeless classics to modern hits, her voice defined generations. She may be gone, but her music still lives on. Many of them, in fact, fans of her voice have been at her residence, many of them trying to catch the last glimpse of one of the most famous voices in India. Uddhav Thackeray also meeting with the family and speaking with the family members and consoling them and offering his condolences. This is the vehicle that has been prepared for the final journey of the singer. It has been decked with Uddhav Thackeray and his family members at Asha Bhosle's residence. Celebrities have been coming in to pay their last respect to a person who has in fact lent voice across
In fact, now we are joined in by Vinod Jagdale, who joins us on the phone line. Vinod Jagdale, काफ़ी लोग आए हैं और सब में एक ही ये सोच है कि अब ये शब्द उनको लाइव में नहीं मिलेगा और सेलिब्रिटीज़ भी आया था। अब अगला कार्यक्रम क्या है? देखिए वर्गीस, आशा भोसले एक बॉलीवुड इंडस्ट्री की वो अदाकारा थी जिनका 92 साल में निधन हो गया। एक ऐसी अदाकारा, एक ऐसी प्लेबैक सिंगर जिन्होंने उम्र के 12 साल में 10 साल में पहली बार अपना परफॉर्मेंस दिया बॉलीवुड में, और लगभग 80 साल तक उन्होंने बॉलीवुड के 14,000 गाने उन्होंने गाए, जिसमें भजन है, इसके बाद बॉलीवुड के गाने हैं, अलग अलग प्रकार के उन्होंने वो गाने वहां पर गाए हैं। और आज जब जब सुबह उनका पार्थिव उनकी घर के नीचे यहाँ पर प्रांगण में रखा गया, तब बॉलीवुड जगत की कई हस्तियां वहां पर पहुंची। क्रिकेट जगत हो, खेल जगत हो, पॉलिटिक्स हो, इन जगत की सारी हस्तियां वहां पर पहुंची। उन्होंने पार्थिव शरीर का दर्शन दिया। अब थोड़ी देर में उनका जो पार्थिव शरीर है वो दादर शिवाजी पार्क का जो शमशान भूमि है उसके लिए वहां पर रवाना होगा एक ट्रक में, और वो यहाँ पर पहुंचेगा करीब बताया जाता है 3:30 बजे। उसके बाद अंतिम विदाई की जो क्रिया है वो शुरू होगी, और बताया जाता है कि करीब 4:30 बजे तक उनको वहां पर मुखाग्नि दी जाएगी। हम बात करें तो शिवाजी पार्क का जो क्रिमेशन सेंटर है वहां पर भी कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटी वहां पर पहुंचने वाली है। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो देवेंद्र फडणवीस है वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री, इसके अलावा जो मंत्रिमंडल के कई सहकारी है देवेंद्र फडणवीस के, वो भी वहां पर पहुंचने वाले हैं उनको अंतिम विदाई देने के लिए। एक बड़ी शख्सियत आज हमारे बीच नहीं है जिन्होंने 14,000 गाने वहां पर गाए हैं। ऐसे अहम गाने हैं जो गाने आज भी लोगों के ओटों पर, और कह सकते हैं उनके जहन में वो गाने आज भी बजते रहते हैं। बड़ा नाम बॉलीवुड इंडस्ट्री का आशा भोसले आज हमारे बीच नहीं है, तो एक कह सकते हैं कि बॉलीवुड हो या फिर महाराष्ट्र की जनता में, देश की जनता में कहीं ना कहीं एक दुख की लहर यहाँ पर दिखाई पड़ रही है वर्गीस। Also, Vinod Jagdale, there's been decades of music that has been there by Asha Bhosle. It's not only, it's not Bollywood में ही नहीं है, दूसरा film industries में भी there are immemorial songs that have been associated with her. She was a pan-Indian voice that everybody recognized, isn't it? देखिए, बात सही आपने कहा कि पैन इंडिया उनका वॉइस था। आपने देखा ही होगा कि उम्र के 10 साल में पहला गाना गाना, और उम्र के 90 साल तक उन्होंने गाने गाए हैं। कुल 14,000 गाने गाए हैं, जिसमें सिर्फ बॉलीवुड नहीं बल्कि अन्य फिल्म इंडस्ट्री की भी वहां पर गाने गाए हैं। कुछ गाने मराठी इंडस्ट्री के लिए भी वहां पर उन्होंने गाए हैं। आशा भोसले की जो आवाज का एक अलग ही जादू था। आपने देखा ही होगा कि उनके कई गाने ऐसे, चाहे फिर वो मुंगड़ा मुंगड़ा जैसा गाना भी हो, या फिर चुरा लिया है तुमने जो दिल को वो गाना हो, या हाल फिलहाल में गाया हुआ कोई भी गाना हो, आपने देखा होगा कि 90 साल की उम्र तक भी वो स्टेज पर परफॉर्मेंस करते हुए हमें नजर आई थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनकी जो तबीयत है वो तबीयत थोड़ी नासाज होने के कारण वो अपने घर में ही रहने लगी, और जब चेस्ट का इन्फेक्शन हुआ तब उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन कह सकते कि 24 घंटे के भीतर ही वो हमारे बीच नहीं रही। एक बड़ा मुकाम हासिल उन्होंने किया था, कई पुरस्कार उन्हें यहाँ पर मिले थे। महाराष्ट्र सरकार का एक बड़ा पुरस्कार होता है, ऑनर होता है, जिसे महाराष्ट्र भूषण कहा जाता है। वो महाराष्ट्र भूषण का पुरस्कार भी वहां पर आशा भोसले को वहां पर मिला था। तो कहते हैं कि यहाँ पर खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आने की बात यहाँ पर सामने आ रही है, देवेंद्र फडणवीस। उन्हें यहाँ पर अंतिम विदाई देने के लिए राज ठाकरे जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष है, और आशा भोसले के एक पारिवारिक सदस्य है, एक नजदीक का रिश्ता उनके और उन दोनों के बीच रहा है, तो वो भी यहाँ पर पहुंचने की बात यहीं पर कही जा रही है। और तमाम जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग में से जो अब घर जा चुके हैं, उसके बाद जो बाकी बचे हुए लोग भी यहाँ पर उनको अंतिम विदाई देने के लिए वहां पर पहुंचने वाले हैं वर्गीस।